Please welcome Master Path with Mr. Amitabh Bachchan. Hello, beta. Welcome. Namaste, sir. Please be seated. We have Mr. Bhushan Kumar. We'll have all the team for a group photo op. Please come closer. There we have the director, the team from Bihar Studios, Mr. Bhushan Kumar, gracing this occasion. Thank you for being here with us on stage. All right, thank you. Welcome everybody. The mic screens now. In hip hop style, how was your experience with Yo-Yo Honey Singh? It was very painful. Was he scared? But Yo-Yo Singh is now an international star, and he's really so good. He does everything himself, composes the song, writes the lyrics, puts the whole video together. A many-faceted, talented person, and we're really happy that Bhushanji suggested that we should have a song from him in the film, and here we are. And Master Path, and then I'll come down to Bhushan sir. Aapka favorite step kaun sa tha song mein? He's been dancing behind when you came in. So which was your favorite step? Aapka kaun sa favorite step tha? You're showing me something, right? Yeah, that's the one. He does it. And sir, what was the dynamics behind getting this song on board in Bhootnath Returns as a producer? See, actually, in a film means like the Bhootnath Returns which we have made, it was little difficult to make big music into it. So Bachchan Saab always told me that you are involved in the film, so you should get good music in the film. So that's why we thought means which is the current trend which is going on. And Yo-Yo Honey Singh, with whom we have worked so many songs in the past. So I just bounced the idea to Bachchan Saab, and he was very excited on the first time. But initially we thought this song should be not, means we should shoot it more kid friendly. So that's why you see many kids into it, and I'm very excited, means Bachchan Saab has performed so well in the song, and he's looking as dynamic as he is. So that's the thing about it. And now to the director. So what was the most difficult part of this song to shoot? The kids or the booths? I mean the little booths. Actually, this song has been directed by Gifty, the guy who directs most of the videos of Honey Singh. But we did have a lot of discussion as to how he was planning to shoot this song so that it's in sync with what we have in the film also, so that the song suddenly doesn't become too jarring from the film. So he shared all the vision which he had. We had a lot of pre-production meetings with Mr. Bachchan also, and a lot of inputs came from Mr. Bachchan also as to what needs to be done exactly in the song. So keeping all those things in mind, this is exactly what has come out as an output. And I think people are loving it. Are you guys loving it? Okay, with this I'll move forward to the Q&A. The house is open to question answers from the media. Please raise your hand, identify or introduce yourself, and take the question from there on. We'll have a mic passed on to you. Hi, this is Zohaib from media. Amit ji, we're here. The famous poet William Wordsworth once said, some men are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. Since you are one of the greatest actor of Bollywood, so That's not correct. अरे सर है. So sir, आप इनमें से किस लाइन का ताल्लुक संबंध खुद से जोड़ते हैं या रखते हैं? Wordsworth also said that child is the father of man. And this guy is the child in the film, and I'm the father. So he's much greater than I am. अच्छा अमित जी, since इसमें आप भूत का रोल कर रहे हैं जो है, तो कुछ भूत वगैरह से जो है आपने जो है मतलब मिले या उनसे कुछ आपने अभी तक तो नहीं मिला हूँ सर. अगर आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो शायद मिल भी जाऊँ.
लेकिन अभी तक इत्तेफाक हुआ नहीं है मेरा, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मेरा इत्तेफाक हो किसी भूत के साथ। अच्छा भूषण जी जी आप लगातार यो हनी सिंह के साथ काम कर रहे हैं जो है, सो कंफर्ट लेवल लगता है काफ़ी अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे, इन ईच एंड एवरी मूवी आप हनी सिंह का म्यूज़िक उनको गाने का मौका देते रहते हैं? सी एज हनी सिंह खुद में बहुत बड़े स्टार हैं, मतलब उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। एंड कोइंसिडेंटली मेरा रिलेशन भी है, और उन्होंने जितनी भी फिल्मों में भी म्यूज़िक दिया है और वो म्यूज़िक भी हमने ही रिलीज़ किया है। सो एक अच्छा रिलेशन बन गया, और उसी के वजह से उन्होंने इस गाने को, आई थिंक मैंने उनको 10 दिन का टाइम दिया था गाना बनाने के लिए, 10 दिन में उन्होंने गाना डिलीवर किया। तो नॉर्मली बहुत टाइम लेते हैं, बट इसमें ही वेंट बिकॉज ही वांटेड टू डू विद बच्चन साहब ऑल्सो, इट वाज हिज ड्रीम टू डू विद बच्चन साहब। सो सारी चीज़ें, मेरा एक रिलेशन बच्चन साहब का, उनको इतना इंटरेस्ट था उनके साथ करने का, तो उस वजह से ये गाने की को उन्होंने इतनी जल्दी कंप्लीट किया। बच्चन साहब, श्वेता एबीपी न्यूज़ से। जी सर। सर इस उम्र में हनी सिंह के साथ जब आप डांस कर रहे हैं तो पिछले कितना एंजॉय कर रहे हैं आप अपने डांस को? रिदम क्यों आपको नहीं लगा कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ? उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन नहीं, एक्चुअली काफ़ी दिनों से उनका नाम हम सुन रहे थे और उनका संगीत भी सुना हुआ था। इत्तेफाक की बात यह है कि जितना भी उनका संगीत है वो मेरे पोती पोते जो हैं वो मुझे बताते हैं, तो उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब इन्होंने ये बात कही यो सिंह वाली भूषण जी ने, तो मैंने कहा ऐसे कर लेना चाहिए। और बड़ा मुश्किल होता है ये सब करना हमारी उम्र में, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर गाना था और बहुत सुंदर तरीके से इसे कंसीव किया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको कर लेते हैं। बच्चन साहब, अली फ्रॉम movietalkies.com। या बच्चन साहब, जिस तरह के अपना एक आपका खुद का एक स्टाइल है, हनी सिंह का भी एक खुद का स्टाइल होता है, लेकिन हर बार अपना आप खुद का एक इनपुट डालते हैं, इसमें कोई आपका खुद का इनपुट देखने को मिलेगा हमें? जी नहीं, इस गाने में तो नहीं देखा होगा आपको, और मेरा कोई इनपुट है नहीं। मुझे तो जो डांस डायरेक्टर बोलते हैं करने को, वैसे मैं हिलना शुरू कर देता हूँ। सर ये मेन फिल्म में रखा जाएगा या क्रेडिट लाइंस में आएगा? ये गाना कहाँ आएगा पिक्चर? ये जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कहाँ आएगा ये। बच्चन साहब, रोहित फ्रॉम E24। आपका जो फिल्म का गाना है पार्टी तो बनती है, बहुत फेमस हो रहा है, तो ऐसा कोई आपका रियल लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट जब आपने बोला हो एक्चुअली पार्टी तो बनती है? प्रतिदिन बोलता हूँ मैं, और आजकल खास तौर से बोलता हूँ क्योंकि अब एक गाना मिल गया है मुझे, तो वो सुनता हूँ तो लगता है कि बस पार्टी बन जानी चाहिए। आजकल के जो नए एक्टर्स हैं बहुत पार्टी की चर्चा में रहते हैं, बहुत पार्टी करते हैं। आप अपने टाइम पे कितनी पार्टी करते थे और किन के साथ करते थे? दुर्भाग्यवश आप आए नहीं हमारे उस समय में, वरना आपको पता चल जाता कि हम लोग कैसी पार्टी करते हैं। Amitabh sir, Sakhi here from Headlines Today and Aaj Tak. Abhishek time and again has said that he enjoys hip hop a lot, and you've shot this song in a very hip hop sort of a fashion. Has he seen the song? What was his reaction to it? Yeah, he saw the song, he heard the song when it was in a scratch form. He also heard it when it was in a full form. He's seen the video and he's loved it. All right. One more question, sir. This is digressing a little bit from the topic, but yesterday you tweeted something about Rajnikant and the missing Malaysian aircraft, which confronted a little bit of a displeasure from people on somebody social sent me a media. joke. I just retweeted it. Okay, it was just that. बच्चन साहब, ये इलेक्शन का ये बहुत ही स्टाइलिश भूत है जो पॉलिटिशियन को हराता है, ऐसा जैसे हमने सुना है। तो इस सीजन में ऐसे भूतों की जरूरत पड़ेगी जो करप्शन वगैरह को हरा दे, नेताओं को हरा दे, आप क्या मानते हैं? ये आप फिल्म जब देखेंगे तब शायद इसका अनुमान आप लगा सकें कि सही है, गलत है, क्या है। अभी आपको बता देंगे तो फिर कहानी निकल जाएगी। अच्छा बच्चन साहब, लेकिन इतना मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि आप निराश नहीं होंगे, बच्चन साहब इसमें और ना ही इलेक्शन भी निराश होगा। बच्चन साहब इसमें एक कटाक्ष भी है, अगर आपको वो रैप याद है तो चाहेंगे कि अगर थोड़ा सा आप गुनगुना दें। हाँ जी। एक कटाक्ष है इसमें रैप के तौर पर कि तेरे गंदे गंदे स्कैम, तेरा वो अगर वो पार्टी तो बनती है। हाँ जी, तो अगर
सर उसमें अगर वो रैप आपको याद है तो चाहेंगे थोड़ा सा गुनगुना दे आप। नहीं, आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो गाना गाया नहीं। नहीं अगर आपको याद है तो हम चाहेंगे कि नहीं नहीं, आप गाना देखिए, मैं उसमें गा रहा हूँ। नहीं लेकिन हम नहीं नहीं, लिपसिंग भी नहीं है, भूत कैसे गा सकता है? नहीं नहीं, सोचने वाली बात है। हम आपसे चाह रहे थे मैं तो ना मैंने कपड़े बदले उसमें, एक जगह बदलिए सर। ना मैं पूरी पिक्चर में नहाया हूँ, बस भूत ही हूँ, भूत कैसे नहाएगा? बट सर एक जगह बदला हुआ है सर, अभी हमने सॉन्ग देखा है सर, सॉन्ग में एक जगह बदला हुआ है सर। कपड़े बदले हुए आपने सर। क्या एक सॉन्ग में बंधा हुआ है? बदला हुआ है कपड़ा सर, इसलिए मैं बदला हुआ हाँ, है? ये वाला गाना, वो दूसरी गाने की बात कर रहे थे। मैं क्वेश्चन टू डायरेक्टर, यू नो लाइक आपके जो फ्रेंड है जिसने विकास ओले ने क्वीन तो सुपर हिट बनाया, तो आपने प्रोमो देखा उनकी तरफ से, उन्होंने कुछ कम्प्लीमेंट दिया आपकी मूवी की तरफ से? He called after seeing the promo and he said he's really loved it. So that was the reaction which he got and he said I'm eagerly waiting to see the film. तो अभी नेक्स्ट आप लोग दोनों साथ में मूवी बनाएंगे कि अलग अलग जिस तरह से बना रहे? See, these are the things which can't be decided, you know, like, but one thing is for sure, you know, both of us have spoken about it. We don't know when, but for sure, we'll come back together. बच्चन साहब, एक थोड़ा सा अलग है, एक आपके बहुत सारे दोस्त, आपने तो राजनीति छोड़ दी है, लेकिन आपके बहुत सारे दोस्त पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, आपके करीबी दोस्त। कभी किसी ने आपसे पूछा है कि जाऊं या ना जाऊं, करूं या ना करूं? किसी ने नहीं पूछा, और अच्छा किया कि नहीं पूछा, क्योंकि मैं तो उनको यही राय देता कि आप ना जाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये उनका निजी फैसला है और मेरा कोई हक नहीं बनता उन्हें रोकने में। भूषण जी, अगर हम सॉन्ग्स की बात करो, यू नो हनी सिंह की अभी जो दौर चल रहा है हर कोई पसंद कर रहा है, तो क्या आप लगते हैं कि आपके लिए लकी है, फिर तीसरी उनके लिए लकी है, बिकॉज हर सॉन्ग उनके फेमस होते जा रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जो हिट गाना देता है वो सब हमारे लिए लकी होते हैं। Bachchan sir, Prerna here from Times Now. Sir, according to you, what is the difference in Bhootnath and Bhootnath Returns? One word called returns. No. Bhootnath, the first original one, was about a spirit that has remained behind. उनका पितृपक्ष नहीं होता है और थोड़ा सा अन्याय हुआ है उनके परिवार के साथ, तो जब तक वो अन्याय पूरा नहीं होता, जब तक पितृपक्ष पूरा नहीं होता है, तब तक वो वापस नहीं जाता है। और उसकी मुलाकात होती है एक छोटे बच्चे से, बंकू उसका नाम था, और वही एक शख्स था जो भूतनाथ को देख सकता था। और फिर उन दोनों का कैसे रिश्ता बनता है और कैसे कहानी बनती है और किस तरह से वो फिर जितना भी जो पाप था वो दूर होता है और ये चला जाता है। भूतनाथ रिटर्न्स में अब ये वहाँ पर है, कहाँ पर? जहाँ वो पहले गया हुआ था, अब वो वहाँ से वापस फिर आता है नीचे, और यहाँ पर भी आने के बाद इन भाई साहब से मुलाकात होती है, और यही एक बच्चा है जो इसे देख सकता है। उसके बाद क्या होता है, 11 अप्रैल को सुबह 6 बजे से हमारे शो स्टार्ट होंगे, आप जरूर देखिएगा उसे। धन्यवाद। हेलो, हाय बच्चन साहब, यू नो बच्चन साहब भूतनाथ में जो पहला एक्टर था वो डेब्यूटेंट था, ये उन्होंने पहले से इतने बड़े अवार्ड जा चुके इनके मूवी, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट था इनके साथ, मतलब एज एन एक्टर? थोड़ा सा माइक ऐसे रखिए, आप पता नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। भूतवन में जो पहले भूतवन में जो छोटा बच्चा था पहला वाला, वो काफी पॉपुलर नहीं था, मूवी होने के बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ। ये बच्चा ऑलरेडी इतना पॉपुलर है, तो हु इज द बेटर फॉर यू, पार्ट 1 के पार्ट 2? भूत, मैं भूत हूँ, उधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। मरवा देंगे आप हमें, बंकू भी मारेगा और ये अखरोट भी। हेलो, हाय। They're all very good, and I want to say, especially not because he's sitting next to me, but I tell you, this little fellow is an exceptional talent. Really, really proud of him. It has been such a wonderful joy to work with him. When you see the film, you will realize that, you know, most mature artists will not be able to do that in their films, or especially for somebody like him at such a young age, to be giving those expressions and to be saying those things and behaving the way he has. Even a mature artist, I never ever had to, tell him what to do. On the contrary, I was learning from him, and he's really, really very good. और बहुत बधाई मैं आपको देना चाहता हूँ पार्थ, बहुत बधाई। इनकी फिल्म अभी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल गई थी, मराठी फिल्म, और इनको पुरस्कार भी दिया गया, वहाँ पर फिल्म को पुरस्कार मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की ये अभिनय कर रहे हैं।
और हमारा आशीर्वाद है इनके साथ, और आगे चल करके और इसी तरह अच्छा काम करते रहें। Sir, did you give him any advice on set or? Sorry. Did you give him any advice? Like any? No, I advice just from told your you I took some advice from him. So yeah. So working with a child artist like him, and then still, despite so many films and being the legend that you are, still keeping the energy to that level and keeping the freshness alive with each film. How do you manage to do that and surprise us every time? Yeah, first of all, I don't believe in all these wonderful epithets that you throw at me. But I think that just the joy of working, getting another job to do, this age, it's really tough to get a job. But I'm fortunate that Nitesh chose me for this role, and the producers, PR Films, they thought that I would be appropriate. I think it's just the joy of going out there and working every day, just being in front of the camera, wanting to work with the youngsters. The average age on sets these days when I work is about 24, and I'm 72, so that's a huge difference. But I just like the work, I like the profession, I like getting up in the morning and going to the studios. I guess that's the closest that I can come to an answer. हाय बिग बी। बिग बी, इस मूवी में तो आपने लोगों को डराने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आप सब, मतलब आज आप हमें मिलकर डराएं। एक मौका मिला हमें डराने का, आप कैसे डराएंगे हमें सबको? मैं आपको डराऊं? हाँ जी, सबको। मैं पागल हूँ, मैं आपको डराऊंगा? जी, सबको मिलकर डराएं। अरे मैं आपको डरा दूंगा, आप मेरे बारे में अच्छा लिखेंगी नहीं? जी नहीं। गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ प्रचार जो है हमारा खराब हो जाएगा जी, सर। मौका मिले तो आप कैसे डराएंगे हमें सभी? मैं आपको बिल्कुल नहीं डराऊंगा। अब है आपके लिए ये पिक्चर, अश्वत, आपके लिए कितना मायने रखता है ये पिक्चर? बागबान। Well, it is a very important film to us. It's Dad always wanted to make a sequel to the first one, so to be able to do that, I think is great. And as I said, Amit uncle, Bhushan sir have been very helpful, and of course Nitesh with the script. So. और नितेश जी, ये पार्थ कैसे मिले आपको? क्या आपने इससे पहले जो फिल्म बनाई थी उसका असर है? ये बहुत सही प्रश्न पूछा आपने, मैं भी जानना चाहता हूँ, मिला कहाँ ये यार, कैसे मिले तुम? पार्थ को किस तरह हमने फाइनलाइज किया उस बारे में मैं एक एक्चुअली चैप्टर लिख सकता हूँ. आई हैड सीन अ 2-minute clip of his Marathi film Killa, and I found him very promising, you know. So I called him all the way from Pune and had a brief chat with him. And that time I was not very sure because he is too shy in real life and he is something else on screen. So once we progressed, you know, we shortlisted a few kids. You know, we shortlisted 8 kids. We did workshop with them for 15 days and so on and so forth. And then he finally made the cut, you know. But that's a very long story how we finally zeroed it onto Parth. But I'm so happy that we ended up choosing Parth because what he's done, as what Mr. Bachchan said, you know, he's done a terrific job in the film. पार्थ यहाँ पे पार्थ, आप मराठी मूवी से इतने स्टार हो चुके, तो अभी लगातार कंटिन्यू हिंदी मूवी करेंगे कि मराठी मूवी में ज़्यादा फोकस करेंगे? अभी मैं 9th में हूँ, तो अगर अच्छा चांस बच्चन सर जैसे और भी दिग्गज लोगों के साथ अगर आया तो अगर 10th में मैं करूँगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं 10th पे फोकस करूँगा और बाद में करूँगा. भूतों से क्या भूतों से आपको डर लगता है? रियल लाइफ में कभी भूतों का आपने माँ के या डैड के सामने कोई कहानी सुनी भूतों के? हाँ, बहुत कहानियाँ सुने हैं. हमारी गली में एक शॉर्टकट है जिससे हम स्कूल में जाते हैं. तो एक बार हमारी ड्रामा की प्रैक्टिस थी और हमने एक फ्रेंड को डेयर दिया कि तुम वहाँ से जाके दिखाओ घर. हम तीनों एक ही गली में रहते हैं, तो हम वो बोले कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आप तुम दोनों भी चलो मेरे साथ. तो हम तीनों चलने लगे और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ऐसे बाजू में ऐसे वो सीमेंट का कुछ रख के गए थे लोग, और हम जस्ट चल रहे थे, एक ही बल्ब वहाँ पे चल रहा था. हम वहाँ से चल रहे थे और वो फ्रेंड खुद को एकदम वो चिल्लाया और भाग गया. हमें कुछ पता नहीं चला, हम भी चिल्ला के भाग गए. और बाद में वो बोला कि वहाँ पे ऐसा लगा कि वो लोग ऐसा करके बैठे लोग, तो हमें भी डर लगा. बाद में हम सिर्फ सुबह ही उस गली से फिर गुजरते थे. लास्ट क्वेश्चन फॉर द इवनिंग सर. जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? जी, सही बात यह कि वो सीमेंट वाला आदमी मैं ही था. अमित जी पार्थ, एक जब
Yeah, ask. पार्थ, जब अमित सर के साथ आप सामने आप खड़े थे और आपको डायलॉग बोलना था, तो आप कुछ सोचा था कि आप किनके सामने आप बात कर रहे हो? डर था या मतलब एकदम बिंदास जो है? मैं पहले बोलते पूरी पिक्चर में झापड़ मारता रहा है मुझे, आपको पता है? आप जब फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। नहीं, पहले 2 दिन में डर गया था, लेकिन वो मैंने जब मुझे पता चला कि वो बहुत बहुत फ्रेंडली है, बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही बिहेव करते, तो मुझे कुछ डर नहीं लगा फिर। अमित जी, आपकी काफ़ी सुपरहिट मूवीज़ की रीमेक आजकल बहुत काफ़ी बन चुकी हैं। एग्जैक्टली जैसे अग्निपथ थी जो है, तो एग्जैक्टली अभिषेक, ही इज़ योर बायोलॉजिकल सन, ही एग्जैक्टली टॉक्स एंड वॉक्स लाइक यू। So don't you think that की original choice Abhishek should have been there for your remake? This is not a confirmation to just because the father did something, the son should also do the same thing. जो लोग बना रहे थे वो फिल्में, जिन्होंने रीमेक बनाई, उनको लगा कि जिन कलाकारों को उन्होंने लिया है वो सही बैठते हैं उस फिल्म के लिए, और वैसा उन्होंने किया। Last question of the day from the lady there. There was a lady who wanted the last question for the day. पार्थ, आपको कैसा लगा अमिताभ बच्चन के साथ काम करके? बढ़िया लगा। Sir, we all know that you blog, you tweet, and you also love using gadgets at times. So how was your experience coming here, visiting Reliance Digital Express and looking at the wonderful gadgets? I had very little time to actually go through, but on my way down I'll have a look and I'll see I saw all the various screens screening the same song, पार्टी तो बनती है, अच्छा लगा वो देख करके। इसको आप 1.5-2 साल तक चलाते रहिएगा ऐसे ही। Done, sir. All the staff there will do it. Thank you. And with this, we come to an end to today's presentation from the stage. Ladies and gentlemen, also we'd like to let you know, tomorrow is the first anniversary of Reliance Digital Express. Can I have a big round of applause for my staff, please? Thank you. And we have a photo op with the team. Sir, आप सबसे अनुरोध है। सब लोग उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ मांगे और प्रार्थना करें कि हम सब के लिए नहीं, उनके लिए ये फिल्म खूब सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, the staff can put on the best smiles of your lives. Sir, when you're on stage, is the best smile in their lives. The staff, please exit. We have अमित जी यहाँ पे सामने। अमित जी यहाँ पे एक सेंटर में। अमित जी यहाँ पे। अमित भैया। अमित जी। Done. We'll have a final photo with the team. The last photo. मैम या सर। रेणु जी यहाँ पे मैम। रेणु जी। पराग। बच्चन सर। अमित जी। अमित जी सर। बच्चन सर। अमित जी। Thank you, sir. Thank you, ladies and gentlemen. The media is requested, please collect your snack boxes on the way out. Thank you.